بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ ویورز؟ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل ARC موٹیویشنل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو چلیے ویورز، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویورز، آج آپ سنیں گے دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ اردو آڈیو بک کی 10ویں ایپیسوڈ نمبر 10، اپنے مسائل کو خود حل کیجیے۔ میں آپ کو ان چند خوش قسمت افراد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے مسائل کا حل خود دریافت کیا اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ انہوں نے انتہائی سادہ لیکن عملی منصوبے پر عمل کیا اور ہر قدم پر کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ وہ سب بھی آپ ہی کی طرح انسان تھے، ان کے ساتھ بھی وہی اداسیاں اور مایوسیاں لگی ہوئی تھیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر ان کو ایک ایسا نسخہ ہاتھ آ گیا جنہوں نے ان کے معاملات چٹکیوں میں حل کر دیے۔ آپ بھی اس نسخے کو آزما کر دیکھیں، یقیناً آپ کو بھی اچھا پھل ملے گا۔ سب سے پہلے میں ایک میاں بیوی کا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ بل کئی سالوں کی سخت محنت و مشقت کے بعد اپنی کمپنی میں دوسرے نمبر کے سرکردہ عہدے پر پہنچ گیا۔ موجودہ صدر کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ عہدہ اسے ہی ملنے والا تھا۔ اس کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے یہ خیال بعید از قیاس بھی نہیں تھا، مگر بدقسمتی دیکھیے کہ جب وہ وقت آیا تو باہر سے ایک آدمی کو لا کر صدر بنا دیا گیا اور بل منہ دیکھتا رہ گیا۔ میں اظہار افسوس کے لیے دوسرے ہی روز ان کے گھر چلا گیا۔ میری کی ذہنی حالت انتہائی مخدوش ہو رہی تھی۔ ڈنر کے لیے جب ہم بیٹھے تو وہ اچانک پھٹ پڑی۔ غصے اور غم کے مارے اس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک کمپنی کے ڈائریکٹرز پر اپنا غصہ اتارتی رہی اور خوب بک بک جھک جھک کی۔ اس کے مقابلے میں بل انتہائی خاموش لیکن افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اشتعال میں آنے کی بجائے سنجیدگی سے لیا تھا اور ہمت مردہ مدد خدا کے نسخے کو آزمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری چاہتی تھی کہ بل فوراً استعفیٰ پیش کر دے۔ اس نے منہ کی جھاگ نکالتے ہوئے بل کو مشورہ دیا، اپنا استعفیٰ کمپنی کے منہ پر مارو اور انہیں کہہ دو تمہیں ایسی بے عزتی والی ملازمت نہیں چاہیے۔ لیکن بل نے بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگرچہ اس کا حق مارا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ نئے صدر کے ساتھ تعاون کرے گا اور کمپنی کے مفاد میں جو بھی نیک مشورے دے سکتا ہے وہ دے گا۔ یہ طرز عمل یقیناً حیرت انگیز تھا اور عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں تھی، مگر وہ اس کیفیت سے بھی آشنا تھا کہ اس نے کئی برسوں تک کمپنی کو اپنا خون جگر پلایا ہے اور اس کے اب چلے جانے سے اس کے اپنے نقصان کے ساتھ ساتھ کمپنی بھی نقصان میں جا سکتی ہے۔ کمپنی کو اس کی ضرورت ہے اور یہی وقت ہے کہ وہ اپنی محبت اور وفاداری کا حق ادا کرے۔ میری نے اچانک مجھے آزمائش میں ڈال دیا اور میرا مشورہ طلب کیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری طرح میں بھی کافی دل برداشتہ ہوں، لیکن غصے اور نفرت سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں ٹھنڈے دل سے اس معاملے پر غور کرنا پڑے گا۔ میں نے رائے دی کہ ہمیں روحانی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ ہماری عقل کچھ اور کہتی ہے لیکن قدرت شاید کوئی اور راستہ دکھا سکے۔ میں نے کہا کہ ہم چند منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، جب میرے نام پر چند لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں خود بھی ان کے درمیان پہنچ جاتا ہوں۔ یہ حوالہ دے کر میں نے کہا کہ اب ہم 3 ہو گئے ہیں اور اگر ہم اس جذبے کو سامنے رکھ کر چلیں تو اللہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا۔ میری کے معاملے میں یہ معاملہ کچھ آسان نہ تھا، مگر بنیادی طور پر وہ ایک سمجھدار اور ہوشیار عورت تھی۔ چنانچہ وہ جلد ہی راضی ہو گئی۔ خاموشی کے چند لمحات گزارنے کے بعد میں نے مشورہ دیا کہ اب ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھتے ہیں اور اگرچہ یہ ایک عام ریسٹورنٹ ہے پھر بھی ہم مل جل کر دعا کریں گے۔ اس دعا میں دعا کی گئی کہ خدایا ہمیں کوئی راستہ دکھا اور ہمارے ذہنوں کو سکون عطا فرما۔ میں نے مزید اس بارے میں بھی دریافت کر لیا کہ نئے صدر کا طرز عمل کیسا رہے گا اور پھر یہ بھی دعا کی کہ بل کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ اپنی جگہ پر جمع رہے اور اپنی ذہانت اور صلاحیت سے کمپنی کو مزید فائدہ پہنچائے۔ دعا کرنے کے بعد ہم چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور تب ایک گہری سانس لیتے ہوئے میری بول اٹھی، میرا خیال ہے کہ ہم نے واقعی ہی صحیح قدم اٹھایا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ڈنر کرنے آ رہے ہو تو مجھے خطرہ تھا کہ تم کوئی منفی کردار ادا کرو گے، مگر یہ امید نہ تھی جو تم نے ابھی کیا۔ اندر ہی اندر میں غصے کی آگ میں سلگ رہی تھی، مگر تم نے ہمیں سیدھی راہ پر لگا دیا۔ اب میں اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھوں گی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی اور اس کے چہرے پر شگفتگی چھا گئی۔ میں اکثر و بیشتر ان میاں بیوی سے ملتا رہتا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں خوش و خرم ہیں اور انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ ان کی مایوسی اور بے دلی رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔
बिल अक्सर कहा करता था कि इसने नए सदर से दोस्ती कर ली, वो एक नेक और खुश अखलाक आदमी है और अक्सर औकात मुझसे मशवरे किया करता है। मेरी तरफ उसका झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। मैरी ने भी नए सदर की बीवी से दोस्ती कर ली थी और दोनों में गाड़ी छनने लगी थी। 2 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन मेरा इनके शहर से गुजर हुआ तो मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया। ओह, मैं इस कदर खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकती, मैरी ने फर्ते मुसर्रत से कहा। मैं समझ गया कि ज़रूर कोई ना कोई खिलाफ मामूल बात है, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले वो दोबारा चिल्लाई। एक नाकाबिले यकीन मामला ज़रूर पजीर हुआ है। वो साहब जो कंपनी के सदर मुंतखब हुए थे, उनकी तरक्की हो गई है और वो दूसरी कंपनी के सरबराह बन गए हैं। और उसने एक तवक्कुफ किया। खुद ही सोच लो उसके बाद क्या हुआ होगा। बिल को खुशखबरी सुना दी गई है कि अब वो सदारत का अहदा संभालेंगे। आप एक मिनट भी वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ तशरीफ़ ले आए। हम एक बार फिर मिलजुल कर दुआ करेंगे। जब हम मिल बैठे तो बिल ने बताया कि अब मैं ईसाइयत का मुकम्मल तौर पर मुतअक्कद हो चुका हूँ, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए है। हमें चाहिए कि हर मसले का हल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में ढूंढें। इस बात को अब कई साल गुजर चुके हैं। मैरी और बिल की ज़िंदगी में कई दुश्वार गुजार मराहल आते रहे, मगर सब कुछ उन्होंने इस तरकीब से हल कर लिया। ये नुस्खा था कि अपना मसला खुदा पर छोड़ दो। मुझे किसी मगरबी शहर के रोटरी क्लब में एक तकरीर करनी थी। एक ताजर ने मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी। मेरे एक अखबारी कालम में उसने कुछ पढ़ा है। उसके बाद इसकी तिजारत में एक इनकलाब बर्पा हो गया। कुदरती तौर पर मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर मैंने ऐसा क्या लिख दिया जिसका नतीजा इस कदर इनकलाब अपनी निकल आया। मैं बुरी तरह दुश्वारियों में घिरा हुआ था। वो कहने लगा, दर हकीकत मामला इस कदर डावाडोल था कि मुझे अपना कारोबार बचाने की फिक्र पड़ी हुई थी। एक के बाद एक मुसीबत नाज़िल होती जा रही थी। ऊपर से मुल्क की मईशत भी बिगड़ी हुई थी और फिर वो मजमून मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें एक नया ख्याल पेश किया गया था। शायद वो जुमला कुछ इस तरह था, अल्लाह के साथ शराकत कर लो। मुझे पहले तो ये ख्याल किसी पागल का नजरिया लगा। कोई इंसान अल्लाह को अपना हिस्सेदार कैसे बना सकता है। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने आपकी एक किताब मुझे दी। इस किताब में यही बात मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान की गई थी। चंद हकीकी वाक़यात भी दर्ज थे कि जिन लोगों ने इस मशवरे पर अमल किया उनको क्या फ़वायद हासिल हुए, मगर मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी। चुनांचे मैंने इन पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर गोया हुआ। बहरहाल एक दिन एक मुज़हका खेज़ वाक़या हुआ। मेरा दिमाग इस कदर पराकंदा हो रहा था कि मैंने सोच लिया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी जंगल में निकल जाऊं। फिर अचानक ये ख्याल आया कि क्यों ना अल्लाह को अपना दोस्त बना लिया जाए। मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपना सर दोनों बाजुओं के दरमियान संभाल कर डेस्क पर रख दिया। यहाँ मैं ये एतराफ़ करता चलूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी में 1 दर्जन से ज़्यादा दफ़ा इबादत नहीं की होगी। बहरहाल आज बड़े खुशू खुशू से दुआ करने लगा। मैंने अल्लाह से कहा कि मैंने आपको साथी बनाने का ख्याल किसी दोस्त से लिया है और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि इस बात का मतलब क्या है। मैंने अल्लाह को ये भी बता दिया कि मैं डूब रहा हूँ और मुझे अपने बचाव की कोई तरकीब नज़र नहीं आ रही। मैंने ये भी कहा कि ऐ अल्लाह, मैं आपको अपने कारोबार में से कुछ ज़्यादा हिस्सा नहीं दे सकता, मगर आपसे इल्तमास है कि इस नाजुक मौका पर मेरा साथ ज़रूर दीजिए और मेरी मदद फरमाइए। अब मेरा कारोबार आपके हवाले है। मैं, मेरा ख़ानदान, मेरा मुस्तकबिल, सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, जैसे और जो चाहे करें। अगर आप कोई मशवरा इनायत करेंगे तो पूरी तवज्जो और दिलजमई के साथ इसे सुनूंगा और इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। वो बोलता ही चला गया। ये थी वो दुआ जो मैंने सदके दिल से मांगी। दुआ ख़त्म करते ही आराम से आंखें बंद करके बैठा रहा। शायद मैं इस उम्मीद में था कि अचानक ही कोई मौजूदा रूनुमा होगा, मगर कुछ भी ना हुआ। बहरहाल एक बात ज़रूर हुई कि मेरा कल्ब मुतमईन हो गया। वो दिन आम हालात की तरह गुजर गया, मगर दूसरे रोज़ जब मैं अपने दफ्तर में दाखिल हुआ तो मेरा दिल पुसे मुर्दा और उदास नहीं था और मैं काफ़ी फरहत महसूस कर रहा था। मैंने अपने आप में खुद एतमादी महसूस की। अगरचे हर बात हस्बे मामूल थी, मगर मुझे किसी तब्दीली का एहसास होने लगा था। अब मैं रोज़ बरोज़ अपना वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारने लगा। अपने पार्टनर यानी अल्लाह से मुखातब भी होने लगा।
अचानक बैठे बैठे एक दिन एक नया नजरिया नज़र मेरे जहन में दर आया। मैंने अपने आप से कहा, कुछ अपनी अकल भी इस्तेमाल करो। इससे कबल मैं काफ़ी सुस्त और काहल बना बैठा हुआ था। मैं समझ गया कि मेरे पार्टनर ने कोई इशारा किया है। उसके साथ ही मेरा जहन रोशन हो गया और तरह तरह के ख्यालात आने लगे। कारोबार बढ़ता चला गया और मेरे हालात काफ़ी बेहतर हो गए। मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि ये अपने अपने एतकाद की बात है। बहरहाल अल्लाह से लौ लगा लेने और इसके साथ शामिल हो जाने के नताइज यकीनन शानदार होते हैं। आप एक बार ये तजर्बा करके देखें। एक बहुत बड़े ताजर ने मुझसे कहा कि इंसानी जहन और इसकी क़ुव्वत पर मुझे भरोसा है। ये उसका अपना अक़ीदा था। आम हालात में ये बात बिल्कुल सच्ची लगती है, लेकिन नागहानी हालात में इंसानी हिम्मत और ताकत जवाब दे जाती है। जब दो या दो से ज़्यादा अशख़ास मिलकर दुआ करते हैं और अल्लाह की हिकमत के कायल हो जाते हैं तो फिर इनके अंदर की सलाहियत उभरती है। दुआ और इबादत एक ज़बरदस्त जादू है। बाइबल हमें यही सबक देता है कि अगर इस किताब पर एतकाद रखा जाए और इसकी बाकायदा तिलावत की जाए तो हर मुश्किल आसान हो सकती है और ज़िंदगी के तमाम दुश्वार गुजार मराहल को आसान कर सकती है। बेशक बहुत से लोग पढ़ते भी हैं और इबादत भी करते हैं, लेकिन अगर दिल की सच्चाई और गहराई से इस पर यकीन रखा जाए तो ये कामयाबी की ज़मानत बन जाती है। बाइबल में जगह जगह हमें ये सबक दिया गया है। अगर हमारा एतकाद सरसों के बीज की तरह मजबूत है तो तुम्हारे लिए दुनिया की कोई मुश्किल दुश्वार नहीं है। ये कोई शराब और ख्वाबो ख्याल नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। ये अकीदा हर मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा और हर मुश्किल को आसान करेगा, बशर्ते कि इबादत को तुम अपना ईमान बना लो, इस पर बाकायदगी से अमल करते रहो। अब मैं एक और वाक़े की तरफ आता हूँ। मैंने अपने दोस्त माउरेस और मैरी एलाइस क्लिंट का जिक्र अपनी पिछली किताब ए गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग में भी किया है। ये दोनों हर मामले में बुरी तरह नाकाम होते चले जा रहे थे और न सिर्फ अपनी मुलाजमत में बल्कि हर जगह इन्हें मायूसी और बददिली का मुंह देखना पड़ रहा था। दरअसल वो शुरू से ही बुज़दिली और डर और खौफ का शिकार थे और उन्होंने खुद को तस्लीम किया कि ये कमज़ोरियाँ उनके अंदर मौजूद हैं। उन्होंने एक रोज़ बाइबल का खुलासा पढ़ लिया और इस फ़लसफ़े से बेहद मुतासर हुए। सरसों के बीज की तरह मजबूत एतकाद। माउरेस इन दोनों फिलाडेल्फिया में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। उसने मुझे न्यूयॉर्क के चर्च में फ़ोन किया, मगर सेक्रेटरी से इसका राब्ता न हो सका। मैं इसे चंद मशवरे देने का तहैया किए हुआ था, मगर इसने दोबारा कॉल नहीं की क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर था और हर काम नामुकम्मल छोड़ दिया करता था। मगर फिर भी चर्च से कुछ रहनुमाई हासिल करता रहा। अगले हफ्ते वो अपनी फैमिली लेकर न्यूयॉर्क आ गया और ख़राब मौसम के बावजूद चर्च आने जाने लगा। बाद में अपने एक इंटरव्यू में इसने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई और मेरी मदद का ताल्लुक हुआ। वो इस कदर ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार था कि इसकी तमाम उम्मीदों पर बोझ पड़ गई थी। मैंने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अगर वो अपना दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त रखे और अपनी तवज्जो मज़हब की तरफ मकबूल कर दे तो अल्लाह उसके हाल पर रहम फरमाएगा और तब वो जल्द ही अपनी मुश्किलात पर काबू हासिल कर लेगा। मैंने इन्हें समझाया कि दोनों मियाँ बीवी को नाराज़गी और खफगी के जज्बे को भी खैर बात कहना होगा। इन लोगों का गुस्सा हर वक्त नाक पर धरा रहता था और अपनी नाकामियों का मलबा वो दूसरों पर उतारते थे। ऐसे तल्ख माहौल में किसी खुशगवार नतीजे की उम्मीद कैसे की जा सकती है। माउरेस क्लिंट बिलाकर इस नुक्ते को पा गया, मगर अभी इसका रवैया कुछ कमज़ोर सा था क्योंकि इसकी खुद एतमादी बहाल नहीं हो सकी थी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस काम के लिए कुछ वक़्त दरकार था। एक रात वो किचन में चला गया जहाँ उसकी बीवी बर्तन वगैरह धो रही थी। वो इससे मुखातब होकर कहने लगा, एतकाद का मरहला हम एतवार को चर्च में जाकर तय कर सकते हैं, मगर मेरी मुश्किल यह है कि मैं सरसों के बीज कहाँ से लाऊं कि जब मेरा यकीन मुतज़लज़ल होने लगे तो मैं सरसों के बीज दरमियान में डालकर इसमें मजबूती पैदा कर सकूं। और फिर इसने अपनी बीवी से पूछा, क्या हमारे पास सरसों के बीज मौजूद हैं? या सिर्फ बाइबल में ही जिक्र किया गया है? मैंने तो ऐसी बात कभी नहीं सुनी। उसकी बीवी हंसने लगी और कहा, अचार के मर्तबान में थोड़े से सरसों के बीज पड़े हुए हैं, उन्हें अपनी जेब में रख लो। उसने जल्दी जल्दी चंद दाने निकाले और अपने शोहर को पकड़ा दिए। माउरेस, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें असली सरसों के बीज की ज़रूरत नहीं है?
क्योंकि ये सिर्फ एक ख्याली इशारा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मावरेज बोला, बाइबल में हुक्म दिया गया है कि सरसों का बीज इस्तेमाल करो और मैं ऐसा ही करूँगा। मुमकिन है कि ये यकीन का इस्तारा हो। उसने अपनी हथेली की तरफ देखा और हैरत से कहने लगा, मुझे एतकाद की ज़रूरत है, वह इसकी मकदार थोड़ी ही क्यों ना हो, बिल्कुल इन दानों की तरह जो तुमने अभी मुझे दिए हैं। उसने इन दानों को अकीदत से चूमकर अपनी जेब में रख लिया और कहा, मैं इन्हें संभाल कर रखूँगा ताकि मेरे एतकाद के जज्बे को तक़वियत पहुँचे। मगर इतनी देर में वो सरसों के बीज इसकी जेब से निकलकर गायब हो चुके थे। तब इसके जहन में ख्याल आया कि इन्हें प्लास्टिक की थैली में रखना चाहिए। उसने चंद और दाने अचार की बोतल में से निकाले, उन्हें प्लास्टिक की थैली में बांधा और सोचने लगा, यकीन करें वो दिन है और आज का दिन है, वो दोनों तरक्की पर तरक्की करते चले जा रहे हैं और आज इन जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं। मंदरजा वाला बाब में मैंने मसाइल को हल करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार पर आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं 10 सादा तजावीज़ मज़ीद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जिनसे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। नंबर 1, ये एतमाद रखो कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल मौजूद है। नंबर 2, इत्मीनान और सुकून बरकरार रखो। असाबी तनाव ख्यालात की रवानी को रोक देता है। ज़हनी दबाव के दौरान तुम्हारा जहन मफलूज होकर रह जाता है। मामले को आसान अंदाज में संभालने की कोशिश करो। नंबर 3, ज़बरदस्ती कोई हल निकालना भी दुरुस्त नहीं। पुरसकून रहकर सोचो, बात खुद ब खुद वाज़ेह होती चली जाएगी। नंबर 4, मामले की तमाम जुज़वियात को अलग अलग और इंसाफ के नुक्ता नज़र से देखो। नंबर 5, एक कागज़ पर तमाम निकात तहरीर करो। इस तरह बाकायदा एक तरीक़ाकार के तहत ख्यालात तुम्हारे जहन में आएंगे और तुम हर बात का बारीकी से जायज़ा ले सकोगे। नंबर 6, इस यकीन के साथ दुआ मांगो कि अल्लाह कोई ना कोई तरकीब तुम्हारे दिमाग में डाल ही देगा। नंबर 7, 73वीं आयत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह से रहनुमाई तलब करो। अल्लाह अपनी ख़ास इनायत मुझ पर नाज़िल करेगा। नंबर 8, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आने का इंतज़ार करो। नंबर 9, चर्च चले जाओ, तहत शऊर को अपना काम करने दो और साथ ही साथ इबादत जारी रखो। रूहानी क़ुव्वत कोई सही जवाब ले ही आएगी। नंबर 10, अगर पूरे खलूस से इन हदायत पर अमल करोगे तो मसले का लाजमी दुरुस्त हल निकल आएगा। व्यूअर्स, ये थी आज की 10वीं एपिसोड। वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और मेरे चैनल ARC मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।